Good morning students. Our next topic is kinds of table. How many types of tables are there? So we can divide in two types according to purpose and according to construction. According to purpose there are two types of table. Number first is general purpose table and number second is special purpose table. General purpose table, as its name suggests, these tables are not used for any specific use. These are only just data bank. Such tables are just data bank. These tables are generally attached to some official reports. General purpose tables are attached with some official reports like census reports of India. So these tables are also called reference table. ये बस reference table होती हैं. These tables are not used for any specific use. Number second is special purpose table. Special purpose tables are generally short and these are small tables limited to the problem under consideration. In these tables data are presented in the form ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस. इसमें जो रिजल्ट होता है, जो एनालिसिस होता है, बस जो उसी को शो किया जाता है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती. सो दीज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड समरी टेबल्स. इसलिए इनको हम समरी टेबल्स भी कहते हैं. शॉर्ट टेबल्स होती हैं ये, और जनरल पर्पस टेबल थोड़ी बड़ी टेबल होती हैं, बट दीज आर नॉट फॉर स्पेसिफिक यूज. ये ओनली बिल्कुल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं. स्पेशल पर्पस टेबल. नेक्स्ट वी कैन डिवाइड टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक सिंपल टेबल होती हैं और कॉम्प्लेक्स टेबल होती हैं. सिंपल टेबल में ओनली वी टेक टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल, इन क्लास 11th देर आर 100 स्टूडेंट्स, इन क्लास 12th देर आर 80 स्टूडेंट्स, एंड इन BA फर्स्ट ईयर देर आर 70 स्टूडेंट्स. सो वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ टेबल इन सिंपल वे, वन वे टेबल, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन, क्लास और उसमें पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं. वी ओनली नो द क्लास नेम एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर क्लास. सो दिस इज कॉल्ड सिंपल और वन वे टेबल. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल मे बी डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड टेबल. डबल वे टेबल what can be? In this type of table there are, we take two characteristics of data. Two characteristics of data. For example, in class 11th there are 40 boys and 30 girls. So total students will be 70. 70 students will be total, 40 boys and 30 girls. So here we can see there are two characteristics, means in class 11th one characteristics of student is boy and second characteristic is girl. So this type of table is double way table because there are two characteristics of data given. And triple way table, what is triple way table? Triple means 3, in which 3 characteristics of data are given, means boys, how many boys are from urban areas, how many boys are from rural areas, how many girls are from urban areas and how many girls are from rural areas. तो इस तरह से एक टेबल हम और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, that will be ट्रिपल वे टेबल. एंड मैनीफोल्ड टेबल जिसमें तीन से भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड टेबल. So student, I hope you understood well kinds of table. Next is classification of data and tabular presentation. डाटा को हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं. नंबर फर्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, नंबर सेकंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, एंड नंबर थर्ड वन इज टेम्परल क्लासिफिकेशन, एंड नंबर फोर्थ इज स्पेशल क्लासिफिकेशन. नंबर फर्स्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. जब डाटा क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी ऑफ द पर्सन. फॉर एग्जांपल, डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट may relate to rural
अर्बन एरियाज़ की रूरल एरिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर कितने अनएम्प्लॉयड हैं और अनस्किल्ड वर्कर कितने अनएम्प्लॉयड हैं, मेल एंड फीमेल. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स द क्वालिटेटिव मेजर्स if data are classified, then this is called qualitative classification. For example, in Haryana there are in a small town we are taking this data, the unemployment situation of one small town. 20 are from rural areas, male, and 10 male persons are from urban areas. So total it is 30. Total number will be 30. It means 20 लोग गांव से आते हैं और 10 लोग शहर से जो कि बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है. फीमेल में क्या है, गांव में 30 और अर्बन एरिया में 20 जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है. तो टोटल कितना हो गया 50. फिर इसका हम रूरल का टोटल कर लिया 50 और अर्बन का किया 30, तो ये ग्राउंड टोटल हमारा हो गया 80. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डाटा हमने किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है, मेल, फीमेल और रूरल एंड अर्बन. तो मेल, फीमेल और रूरल अर्बन के बेसिस पर अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो ये क्या है, ये क्वालिटी हैं, एट्रीब्यूट्स हैं. सो दैट्स वाई वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ डाटा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड वी विल प्रेजेंट इन दिस वे in the form of table. Next is quantitative classification. Suppose we are taking the example of the subject economics of 11th class students. 10 से 20 मार्क्स 5 बच्चों के आए. 5 students got in the class test 10 to 20 मार्क्स. 10 से 20 के बीच जो मार्क्स मिले हैं वो कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को. 20 to 30 मार्क्स are obtained by 10 students and 30 to 40 15 and 40 to 50 20 students. So this data is showing the quantitative classification because here is also quantity and in this line we are also looking quantity. यहाँ पर क्वालिटी नहीं है किसी स्टूडेंट की, क्वांटिटी कि 10 से 20 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स आए, 5 बच्चों के, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में रहे, 10 स्टूडेंट्स. सो दिस इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और इसकी टेबल हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं. Next one is student temporal classification. Temporal classification is based on time period. For example, in the year 2015, 1 lakh cells are sold by Samsung mobile phone. एक कंपनी है सैमसंग मोबाइल फ़ोन जिसने इंडिया में 1 लाख फ़ोन की यूनिट्स सेल किए इन द ईयर 2015. 2015 में 1 लाख फ़ोन इस कंपनी ने बेचे. सो दिस इज़ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइम. मंथली वी कैन क्लासीफाई द डाटा, वीकली we can classify the data and yearly we also can classify the data. Next, in 2016 the sales boost up and it increased to 2 lakh. In 2016 this company sold 2 lakh units. In 2017 this company sold 3 lakh units and in 2018 this company sold 4 lakh units. This is just this data is based on hypothetical data. This is not real data. So students, this type of classification is called temporal classification because this is based on time. इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचे गए हैं. तो और भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी हम इसके अकॉर्डिंग टेम्परली मीन्स टाइमली इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. Next one is spatial classification. Spatial classification students is based on geographical classification.
एरिया वाइज जब हम क्लासीफाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम डाटा ले रहे हैं, एक हम अपने दिमाग से डाटा बना रहे हैं, दिस इज नॉट रियल डाटा, कि इन 2015 इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एब्रॉड, how many students are studying in USA, how many students are studying in China, how many students are studying in Russia, कितने बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे चाइना में, कितने यूएसए में। तो हम इसका एक डाटा बना रहे हैं और कोई भी ईयर इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 2015 ले लिया और एक यहाँ पर हम इमेजिनरी डाटा क्रिएट कर रहे हैं कि यूएसए में 4 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, in China 3 lakh students, in Russia 2,50,000 and in Australia 5 lakh and in Britain 6 lakh। तो इस समय ये पता चल रहा है कि लोकेशनल क्लासिफिकेशन है ये, कि कितने बच्चे किस कंट्री में हमारे देश के स्टडी कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। So this type of classification is called spatial classification, and spatial classification we can present in this way, in the form of table. नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा को हम अगर इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी क्या मेरिट्स होती हैं। नंबर फर्स्ट इज सिंपल एंड ब्रीफ। इट facilitates the facility of converting data brief, it converts data in brief form। जो हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा डाटा होता है उसको ब्रीफली इसमें क्लासीफाई हम कर सकते हैं और जिससे कि ये आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। और दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ब्रीफ टू अंडरस्टैंड ए टेबल, क्योंकि जो रिटिन फॉर्म में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको रीड आउट करना पड़ता है, वी हैव टू गो थ्रू द होल डाटा। बट इन टेबुलर प्रेजेंटेशन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑन एट ए ग्लांस वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन की इसमें सुविधा होती है, लाइक मेल एंड फीमेल, हम टेबल को देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स मेल हैं कितने फीमेल हैं इन एनी पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट वन इज इजी एनालिसिस। एनालिसिस करना आसान होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम टेबल्स। It is by organizing the data in the form of table and that one finds out their central tendency, dispersion and correlation। और इसमें हम आसानी से टेबल से सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मोड, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि यह बहुत ही एनालिसिस करना आसान हो जाता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन क्या था। नेक्स्ट हाईलाइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। ये डाटा की करेक्टरिस्टिक्स को भी हाईलाइट करता है जिससे कि इसके जो फैक्ट्स हैं स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स उसको लर्न करना आसान हो जाता है, रिमेंबर करना इजी होता है। एंड इकोनॉमिकल, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी इकोनॉमिकल, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड लेस मनी।